Good morning, class. In previous class we have completed our explanation of chapter 1. Chapter 1, tracing family history. Tracing family history. If you remember various topics we have learned in this chapter. Migration. Remember migration, when we move from one place to another to settle down there, it is called migration. Migrants. First, migration. Second, migrants. Who are migrants? People who migrate. जो people एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? Migrants. Third, what we have done? We have learned displacement. Displacement or forced migration. What we have learned? Displacement or forced migration मतलब हम अपनी मर्जी से माइग्रेट नहीं करते हैं, हमें फोर्सफुली या कोई रीज़न की वजह से हमें कहा जाता है कि यू हैव टू माइग्रेट फ्रॉम दिस प्लेस. देन रीजन्स ऑफ displacement or forced migration. Then impact of migration की. माइग्रेशन का हम पे क्या क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होते हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट भी होते हैं. मीन्स कुछ अच्छी चीज़ें भी होती हैं और कुछ नेगेटिव भी होती है, मीन्स जो हमारे लिए फेवरेबल नहीं होती हैं. चेंजिंग फैमिली स्ट्रक्चर में क्या था? व्हेन न्यू बेबी बॉर्न इन आवर हाउस. जब कोई भी न्यू बेबी हमारे घर में बॉर्न होता है, या आफ्टर मैरिज जब हमारे घर में किसी की शादी होती है, तो वो शादी हो गई या तो हमारे घर से चले जाते हैं तो भी हमारा फैमिली स्ट्रक्चर इफेक्ट करता है, और या हमारे घर में कोई शादी होके नया आता है तो भी. ओके. नेक्स्ट इज these main 6 points we have read in this chapter. Okay. After this today we will starting the exercises. आज हम क्या करेंगे? आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे. सो वेरी फर्स्ट एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज A. Okay. It is given on page number 4. कौन सी पेज में दिया है? पेज नंबर 4 में. Look here this. Okay. Fill in the blanks. ठीक है? Fill in the blanks. First is, when people move from one place to another to settle there, it is called dash. First is when people move from one place to another to settle there, it is called, what is called? Migration. What it is called? Migration. MIGRATION. Migration.
मैनी टाइम्स आई हैव टोल्ड यू, जब हम एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट करते हैं, टू सेटल देयर, वहाँ पर शिफ्ट होने के लिए, वहाँ सेटल डाउन होने के लिए, तब उसको हम क्या कहते हैं? माइग्रेशन. डैश इज अ फोर्स्ड माइग्रेशन. डैश इज अ फोर्स्ड माइग्रेशन. Now only I have tell you what is displacement. मैंने बताया था displacement. What is displacement? Displacement is a forced migration. This answer is displacement. Displacement. D-I-S-P-L-A-C-E-M-E-N-T. Displacement. Third, whenever a family member migrates, the whole dash changes. क्या चेंज होता है हमारा? फैमिली स्ट्रक्चर. व्हाट चेंजेस? आर फैमिली स्ट्रक्चर. Whenever a family member migrates, the whole family structure changes. जब भी हमारी फैमिली से कोई माइग्रेट करता है तो हमारा जो फैमिली स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? चेंज हो जाता है. Then is fourth last, the dash were confined to the house when our grandparents were children. Dash were confined to the house when our grandparents were children. Who? Women. मैंने आपको बताया था ना कि विमेन्स क्या होती हैं? विमेन्स आर कन्फाइंड. जो हमारे जब ग्रैंड पेरेंट्स या हमारे दादी दादा या नाना नानी जी जब किड्स थे तब क्या होता था? तब वुमेन्स आर कन्फाइंड टू हाउस होल्ड वर्क ओनली. तब विमेन्स क्या थी? सिर्फ घर के ही काम करती थी, जैसे घर में खाना बनाना, टेकिंग केयर ऑफ देयर बेबीज, अपने बच्चों का ध्यान रखना, घर में सबका ख्याल रखना, सारे घर के काम करना, है ना. उनको मतलब बाहर की दुनिया से या बाहर के कामों से कोई मतलब नहीं रहता था. ओके क्लास. Understood? Fill in the blanks. First one, when people move from one place to another to settle there, it is called migration. M-I-G-R-A-T-I-O-N. Migration. Dash is a forced migration. Displacement. D-I-S-P-L-A-C-E-M-E-N-T. Displacement. Whenever a family member migrates, the whole family structure changes. F-A-M-I-L-Y. Family. S-T-R-U-C-T-U-R-E. Structure changes. The dash were confined to the house when our grandparents were children. The women are confined. कौन confined होता था? Women's. W-O-M-E-N. एंड वन मोर थिंग, ये वर्क आपको अपनी EVS टेक्स्ट बुक में करना है. ओके आप लोग अपनी EVS की बुक में फिल करेंगे विद पेंसिल. कैसे फिल करना है आपको? पेंसिल से. आप ये वर्क अपनी पेंसिल से फिल करेंगे, ठीक है, एंड इन अ वेरी नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग. नेक्स्ट इज एक्सरसाइज B.
टिक द करेक्ट आंसर. टिक द करेक्ट आंसर. इसमें आपको क्या करना है, आपको करेक्ट आंसर को टिक करना है. ओके. पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. फर्स्ट इज पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस to another. People move from one place to another. Now, three options are given. For fewer educational opportunities, कुछ educational opportunities के लिए when they get married, या जब उनकी शादी होती है, और due to natural or man-made calamities. इसमें there may be one or more than correct answer. इसमें दो आंसर्स भी करेक्ट हो सकते हैं. तो द सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट. फर्स्ट इज, टिक लगाएंगे आप ऐसे, when they get married. When they get married. And second is due to natural and man-made calamities. Okay. Second one is people who leave their homes. People who leave their homes during a war and seek shelter in another country are called dash. As I have told you, जो लोग ड्यूरिंग अ वॉर, जो लोग वॉर के टाइम पे अपना घर छोड़ देते हैं और किसी दूसरी कंट्री में जाके शिफ्ट हो जाते हैं और कहाँ रहने लगते हैं, दूसरी कंट्रीज़ में, तो हम ऐसे लोगों को क्या कहते हैं, रिफ्यूजीज. द करेक्ट आंसर इज refugees. Okay. Third and the last, when the government breaks the houses built on unauthorized land, it is called dash. अब जब गवर्नमेंट जो है आपके जो अनऑथराइज लैंड पे जो भी हाउसेज या जो भी बिल्डिंग्स बनी होती हैं उसको जब तोड़ देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज डेमोलिशन. क्या कहते हैं हम उसे, डेमोलिशन. ओके क्लास. नाउ एक्सरसाइज बी. पीपल, फर्स्ट इज पीपल हु मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. पीपल एक जगह से दूसरी जगह कब जाते हैं, व्हेन दे गेट मैरिड, जब उनकी शादी हो जाती है, और ड्यू टू नेचुरल एंड मैन मेड कैलेमिटीज, जब कोई मैन मेड या नेचुरल मतलब सडन या ऐसी कोई भी कैलेमिटीज जाती है या कोई भी ऐसा हो जाता है, तब हम एक जगह से दूसरी जगह वो मूव करते हैं या ट्रैवल करते हैं. पीपल हु लीव देयर हाउसेज
या homes during a war and seek shelter in another country, they are called refugees. When the government breaks the houses built on unauthorized land, it is called demolition. समझ में आ गया सबको? Today we have done 2 exercises, exercise A and exercise B. Exercise A, fill in the blanks and take the correct answer. दोनों एक्सरसाइज आपको बुक में फिल करनी है इन a neat and clean handwriting with a pencil. आप लोग कैसे करेंगे? पेंसिल से अपनी बुक में फिल करेंगे. ओके क्लास, समझ में आ गई सबको? ओके क्लास, नेक्स्ट एक्सरसाइजेस विल डू later. Thank you class and have a nice day.